अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेफरेंस इंडेक्स, इसका इंट्रोडक्शन लिया था हमने। रेफरेंस इंडेक्स और इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स. So what do you mean by reference index? Reference index actually it is a physical quantity, uh, which determines the which gives the measure of the angle of bending of light. So ये हमने कल पढ़ा था. Actually it is the physical quantity. It is the physical quantity. The reference index of a medium is a physical quantity which gives us the measurement of angular bending of the light. So define भी हमने किया था. It is जो reference index हैं और absolute reference index, it is denoted by n और mu. ये हमने पढ़ा था कल. That is reference index is ratio of two speeds in the speed of light in vacuum. और air भी ले सकते हैं क्योंकि air और vacuum में जो speed of light that's almost same. Speed of light in vacuum divided by speed of light in medium. In medium जिस medium का हमें reference index निकालना है, that is speed of light in medium. So what is mu? That is speed of light in vacuum or air. It is denoted by c, and speed of light in medium denoted v. Though this is the mu is equal to c by v. This is the relation of refractive index. Mu is equal to c by v. So ये भी हमने पढ़ा था. It is this ratio of two speed, so it is unitless. It has no units. It is a pure number, unitless. It is a pure number. So, अगर हम लेंगे what is the refractive index of vacuum, so हम लिखेंगे refractive index of vacuum is speed of light in vacuum, that is c divided speed of light in medium, that is again vacuum, go c cancel, go mu is equal to 1. So refractive index of vacuum or air is 1. Refracting index of other mediums is more than 1. So here we compare the refracting index of the medium with the refracting index of the vacuum. So if refracting index of suppose water is 1.3 जो हमने पढ़ा था, it means that it is denser. This water is denser than vacuum or air. हम अगर air लिखेंगे, air का 1 है, so it is denser than air. So refracting index of water is more than refracting index of air. It means that refracting index this optical density of water is more than optical density of air. So here refracting index of vacuum or air is taken as the reference point, and it is compared with other medias. So air का जो है water का 1.33 है, it is optical density more than air. Kerosene का है 1.44, so it is more denser than air and water. ठीक. Turpentine 1.47 है जो हमने पढ़ा था. Turpentine. Diamond है 2.42, इनका जो refractive index है 2.42. ठीक जी. अगर हमें निकालना है, अगर हम निकालेंगे refractive index of glass जो है, हम ऐसे निकालेंगे mu g means glass. So index glass equal to speed of light in vacuum or air. Speed of light in vacuum or air भी ले सकते हैं divided by speed of light in medium is glass. Speed of light in glass. So speed of light in air is 3 into 10 power 8. Speed of light in air glass is 2 into 10 power 8. This is meter per second and this is meter per second. Meter per second, 10 power 8, 10 power 8 cancel. 3/2 will go up. 3/2 ऐसे भी याद रख सकते हैं, या और 1.5. So reference index of glass is 1.5. Similarly reference index of अगर water निकालना है, तो speed of light in air, the speed of light in glass, water, that is 3 into 10 power 8. 2.25 into 10 power 8, 10 power 8, 10 power 8 cancel. 3 divided by 2.25 means 300 divided by 225, that will be equal to 4 by 3. 1.33 is the refractive index of water. So ऐसे हम refractive index निकाल सकते हैं.
जब हम प्रोवाइडेड वी नो द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यह भी हमने पढ़ा था, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया इज़ डिफरेंट। सो हाँ जी, so what is the reference index of free space or vacuum? That is c by c, that is 1. Reference index of free space or reference index of vacuum or reference index of air. So air जो है, air का है, actual air का है 1.003, that is taken as equal to 1. याद रखना है, क्योंकि reference speed of light in air is marginally less than the speed of light in vacuum, but it is not, it is taken as almost equal. So yes, this is about the refractive index. From this relation it is clear that if velocity of light in medium is greater, its refractive index will be smaller. If velocity of light in medium is smaller, refractive index, its refractive index of the refractive index of medium will be larger. Example है जो गिलास में है, velocity of light गिलास जो है दैट इज़ हमने जो पढ़ा था 2 × 10⁸, इसका जो मतलब है रेफरेंस इंडेक्स, इसका रेफरेंस इंडेक्स इसका क्या होगा, अगर वाट गिलास का है गिलास, रेफरेंस इंडेक्स इसका जो क्या होगा, अगर हम कंपेयर करेंगे, सॉरी हाँ अगर इसमें हम कंपेयर करते हैं सबको, 2 मीडिया हम लेते हैं, गिलास एंड वाटर, इसका जो है स्पीड ऑफ लाइट इज़ स्मॉलर हेयर एंड हेयर इट इज़ लार्जर दैन गिलास। सो इसका रेफरेंस इंडेक्स क्या बनेगा, रेफरेंस इंडेक्स इसका ज़्यादा होगा बिकॉज दे आर इनवर्स प्रोपोर्शनल, इसका रेफरेंस इंडेक्स कम होगा एज कम्पेयर्ड विद वाटर, इट स्मॉलर, रेफरेंस इंडेक्स स्मॉलर, लार्जर वेलोसिटी स्मॉलर रेफरेंस इंडेक्स, स्मॉलर वेलोसिटी larger refractive index. So optical जो रियर मीडियम एंड डेंसर मीडियम जो है उनको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। रियर मीडियम जो हमने पढ़ा था एज ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, रियर मीडियम इज़ 1 in which velocity of light is more. ऐसे भी बोल सकते हैं रियर मीडियम इज़ 1 in which the value of refractive index is high. रेफरेंस इंडेक्स इज इन विच रेफरेंस इंडेक्स इज हाई। डेंसर मीडियम को हम बोलेंगे, डेंसर मीडियम जो परसों हमने डिफाइन किया था, डेंसर मीडियम इज़ 1 इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेस, स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेस, बट ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं मीडियम इन विच द वैल्यू ऑफ रेफरेंस इंडेक्स इज़ मोर, रेफरेंस इंडेक्स इज़ मोर, म्यू इज़ मोर। सो ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट ऑप्टिकली रियर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सो जो रेफरेंस इंडेक्स हैं आपको याद रखना है, जो हमने कल पढ़ा था, इट गिव्स मेजरमेंट ऑफ एंगल बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी एंगल जो लाइट आती है यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम से जाती है, ये कितनी बेंड होगी, ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है रेफरेंस इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जितना रेफरेंस इंडेक्स होगा उतना ये बेंड होगा, ठीक इतना ही बेंड होगा ये, ठीक ये हमने पढ़ा था। जो अब याद रखना जो रेफरेंस इंडेक्स है, जो रेफरेंस इंडेक्स ऑफ द मीडियम है, इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। नंबर 1 इज़ द नेचर ऑफ द मटेरियल मीडियम, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम किस मटेरियल का बना है उस पर डिपेंड है, एंड वेव लेंथ ऑफ लाइट या कलर ऑफ लाइट, इन 2 चीज़ों पे डिपेंड है, कलर और वेव लेंथ, कलर और वेव लेंथ ऑफ लाइट, ठीक। जो रेफरेंस इंडेक्स जो हमने पढ़ा था रिलेटिव दिस एब्सोल्यूट रेफरेंस इंडेक्स, इट इज़ ऑलवेज इट इज़ 1 or more than 1. Reference index of vacuum is 1, other medias has reference index more than 1. हाँ जी, इसके बाद जो अगला जो टर्म है that is relative refractive index. It is again important, relative refractive index. जो हमने पढ़ा था ये रेफरेंस इंडेक्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज़ एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी हमने मीडियम विद लार्जर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मीडियम विद लार्जर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू इज ऑप्टिकल डेंसर दैन द अदर। ये भी हमने पता, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम जो है, ऑप्टिकल डेंसिटी डिटरमाइन एबिलिटी ऑफ द लाइट, एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट। जो मास डेंसिटी हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी, मास, दीज आर 2 कंसेप्ट्स, मास डेंसिटी, डेंसिटी को मास वॉल्यूम, यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी है, ठीक।
एग्ज़ाम्पल हम लेंगे जो कैरोसिन जो है उसकी मास डेंसिटी उसको जो कैरोसिन ऑयल जो हमने पढ़ा था, कैरोसिन अगर वाटर की हम बात करेंगे, जो कैरोसिन है कैरोसिन ऑयल, इट हैज़ हाई रेफ्रिजरेटिव इंडेक्स, इसका वैल्यू है 1.33, इसका है 1.47 जो अभी हमने पढ़ा था 1.33. So kerosene has more refractive index यानी ऑप्टिकल डेंसिटी इसको हम बोलेंगे, मगर जो अगर हम मास डेंसिटी की बात करेंगे, वाटर हैज़ मोर मास डेंसिटी दैन kerosene. That is why when we put few drops of kerosene on water, it floats. It means that its mass density is lesser than the water, kerosene oil. But as far as this concern, optical density is concerned, optical density of kerosene more than the optical density of water. It's clear from this value. तो सेकंड जो हम आज हमने पढ़ा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लेते हैं टू मीडिया, डिफरेंट मीडिया, यानी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लेते हैं मीडियम, वैक्यूम एंड अदर मीडियम. यहाँ हम लेते हैं मीडियम 1 एंड मीडियम 2. मीडियम 1 एंड मीडियम 2 आर डिफरेंट फ्राम द वैक्यूम और फ्री स्पेस और आयर. यानी जब लाइट जाती है फ्राम वन मीडियम टू अनदर, it bends at इंटरफेस. जब लाइट यहाँ से यहाँ तक जाती है, हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट ऑफ 1, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट ऑफ 1, यानी 1 से लाइट आती हैं 2 की तरफ जाती हैं. यहाँ हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, एंड इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू 2 1. यहाँ से लाइट 1 से आती हैं 2 में जाती हैं, यानी किस तरह ये जो है 2 है, कितना जो ये लाइट रिफ्रैक्ट करती हैं, कितना लाइट रिफ्रैक्ट बेंड करती हैं, यानी इसी हिसाब से हम बोलते हैं जिस refractive index of 2 with respect to 1. 2 means the medium in which the refraction takes place. 1 is the medium from which the light is coming from. So mu 2 1 equal to is refractive index of 2 with respect to 1. So refractive index of 2 with respect to 1, it is equal to refractive index of medium 2 divided by refractive index of medium 1. So we know that mu is equal to c by v, जो हमने अभी पढ़ा था mu is equal to c by v. यहाँ भी हम mu 2 बन लिखेंगे c by v2, यहाँ लिखेंगे c by v1. c is same fundamental constant, that is equal to c by v2 into v1 divided by c से cancel v1 divided by v2. So ऐसे भी हम लिख सकते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन कैसे बनेगी. So रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu 2 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू mu 2 डिवाइड बाई mu 1. सो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी दैट्स v1 डिवाइड बाई v2. अपोजिट है इसका ये. So relative refractive index of 2 with respect to 1 is velocity applied in medium 1 divided by velocity applied in medium 2. Similarly अगर हम ऐसे डिफाइन करते हैं mu 1 2, यानी refractive index of 1 with respect to 2, here हम ऐसे लिखेंगे mu 1 divided by mu 2, that will be equal to इसका reciprocal v2 v1. अगर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, तो अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे mu 2 1 इंटू mu 1 2, ये क्या बनेगा v1 डिवाइड बाई v2 डिवाइड बाई v1 कैंसिल, v2 कैंसिल. सो mu 2 1 इंटू mu 1 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट 2 इज इक्वल टू 1. यहाँ ये 1 आएगा, कैंसिल होगा. सो mu 2 1 is equal to 1 divided by mu 1 2. It means that they are reciprocal to each other. इसी हिस्सा अगर हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सपोज हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव मीडियम लेंगे गिलास एंड वाटर. सपोज दिस इज द गिलास, मीडियम 1 यहाँ से लाइट आती है, मीडियम 2 की तरफ जाती हैं, यहाँ बेंड होती हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ है इसका. अगर हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या बोलेंगे हम गिलास,
ये गिलास हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी वाटर से आती हैं लाइट, गिलास की तरफ जाती हैं। यहाँ हमें रिफ्रैक्टेड इंडेक्स निकालना है। यहाँ हम निकालेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टेड इंडेक्स, न कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। सो हम कैसे निकालेंगे, GW, म्यू GW, यानी रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सो कैसे लिखेंगे, म्यू G रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ गिलास, म्यू W रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ वाटर। सो म्यू G किसके बराबर है, ये होगा बराबर, ये बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ गिलास जो होता है, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ गिलास जो होता है, जब हम ये लेते हैं, इसमें लेते हैं हम क्या बोलते हैं, इसमें हम लेते हैं C बाई V, यानी हम लेते हैं इसका रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट आयर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम रिफ्रैक्टेड इंडेक्स की बात करेंगे, गिलास विद रिस्पेक्ट टू आयर, जो हम ये डिफ़ाइन करते हैं आयर से, यानी वैक्यूम से कंपेयर करते हैं, यानी जब वैक्यूम की तरफ लाइट आती है, गिलास जब हम डिफाइन करते हैं म्यू G डिवाइड 1 म्यू A इक्वल टू 1, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो म्यू G के बदले हैं लिखेंगे म्यू G डिवाइडेड बाई म्यू A, यहाँ भी है हम लिखेंगे म्यू W डिवाइड बाई म्यू A। तो ये किसके बराबर आएगा, म्यू G डिवाइड बाई म्यू A, ये आएगा बराबर 3/2, यस 3/2। म्यू वाटर का आएगा 4/3। अगर हम करेंगे 3/2, इसको हम सॉल्व करेंगे 3/4, यह आएगा 9 डिवाइड बाई 8। 9/8 is the refracted index of glass with respect to water. Similarly, refracted index of water with respect to glass will be, it is reciprocal 8/9। ऐसे हम निकाल सकते हैं relative refractive index। And thanks.